everyone, I hope you all are doing well and staying safe and healthy. This is Muskan Chhabra and welcome to Commerce Talking. Previous videos में हमने Business Studies Class 11 Chapter 1 that is Business Trade and Commerce का first part History of Trade and Commerce complete कर लिया है. For watching the first part of this chapter, please visit my playlist. और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं Nature and Concept of Business. इस पार्ट के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जैसे कि What are the types of activities? What is business? What are the characteristics of business activities? Comparison between business profession and employment. What are the types of business? What is business risk, its nature and types? What are the objectives of business? And which factors should be kept in mind while starting a business? So let's start. हमारी सोसाइटी में लोग बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई डॉक्टर है जो क्लिनिक में पेशेंट्स को देखता है, कोई ऑफिस में मैनेजर है, कोई टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है, या कोई बिना किसी लालच के समाज की सेवा करते हैं. तो इन सभी एक्टिविटीज को ब्रॉडली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Economic activities are the activities by which we can earn a livelihood. मीन्स ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिसको करने के बदले हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता है या हम उसके बदले कुछ लेते हैं. जैसे कि अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो उसके बदले वेजेस या सैलरी लेता है. डॉक्टर पेशेंट से फीस लेता है, मैनेजर सैलरी लेता है और टीचर्स भी पढ़ाने के बदले सैलरी लेते हैं और इसमें सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं. एंड द नेक्स्ट ग्रुप इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. These are the activities which are performed out of love, sympathy, sentiments or patriotism. For example, कुछ लोग NGOs चलाते हैं और सोशल वेलफेयर करते हैं और जरूरी नहीं कि NGOs ही मदर्स हैं वो पूरा दिन काम करती हैं बट उन्हें कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं होता, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं. लाइक कोई भी एक्टिविटी जिसको करने से हमें मॉनेटरी बेनिफिट ना हो बल्कि हम अटैचमेंट के कारण, प्यार के कारण करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस विच इज द इंपॉर्टेंट एंड द मेन कॉन्सेप्ट. वैसे तो हम जानते हैं कि बिजनेस होता क्या है, बट वी नेवर बॉदर टू नो इट्स प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर डेफिनेशन. बट लेट्स डू दिस नाउ. But before moving towards the definition, let's see कि business word किस word से derive किया गया है. So business word busy word से derive किया गया है. इसका मतलब कि business का literal मतलब है busy रहना. However, this is not the definition of business. The definition of business is business refers to those economic activities which are connected with the production or purchase and sale of goods or supply of services with the main object of earning profit. Means business एक economic activity है. Obviously it is an economic activity because first of all we are studying that business is a category of economic activity and secondly we are getting something from business, that is profit. Without profit business cannot survive. So business refers to economic activity which are connected with the production or purchase and sale of goods or supply of services. Means the production of goods or the purchase of goods, one of them must be there and either the sale of goods or the supply of goods must be there. And what is the motive of doing all this? The motive is to earn profit. Now let's segregate the definition and extract the underlying points. So yes, these are the points. Let's try to understand this one by one. The first point is economic activity. We have already discussed why business is an economic activity. It is an economic activity because we get profit in return. The next point is production or purchase of goods. Means either there is production of goods or there is purchase of goods. One must be there. अब किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो जो वो गुड्स बेचेगा वो कहाँ से लाएगा? या तो वो उसे खुद बनाएगा और या वो किसी से खरीद लेगा. राइट? लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेल ऑफ गुड्स. अब किसी ने गुड्स बना लिए या किसी से गुड्स खरीद लिए तो उसका करेगा क्या? वो खुद तो सारे गुड्स यूज नहीं कर सकता. अगर कोई कार्स बनाने का बिजनेस करता है तो वो कार्स बनाकर उसे बेचेगा ही, खुद तो वही सारी कार्स यूज नहीं करेगा. ऑब्वियसली उसे बेचेगा ताकि उसे कुछ रिटर्न मिले. So this point or this feature must be there, that is sale of goods.
Then comes earning profit. Obviously, it is an economic activity and we will get something in return, or some monetary benefit will be there. What is the return in case of business? Profit. So our main objective is to earn profit. क्योंकि अगर हम प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो मार्केट में सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये सब बन गया हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. These are easy, right? अब इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डीलिंग्स इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. मींस रेगुलरिटी मस्ट बी देयर इन द बिजनेस. अगर कोई बंदा अपने घर में पड़ा फर्नीचर प्रॉफिट पर बेचता है तो इसे हम बिजनेस नहीं कह सकते, बिकॉज रेगुलरिटी इसमें नहीं है. अभी इसके ऑपोजिट कोई बंदा फर्नीचर बेच रहा है प्रॉफिट पर रेगुलर बेसिस पर, then it is a business. So it is a very important feature of every business. One more feature can be element of risk. They say that no risk, no gain. The risk is a main element of every business, whether it is small or large. कुछ रिस्क के फैक्टर्स हैं, जैसे कि कंज्यूमर के टेस्ट और फैशंस में चेंज आना, प्रोडक्शन की मेथड्स में चेंज करना, एम्प्लॉयज की स्ट्राइक, वर्क प्लेस का किसी भी कारण से बंद हो जाना, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाना, या आग लग जाना, चोरी हो जाना, या फिर नेचुरल कॉजेस जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक, एपिडेमिक लाइक कोविड. नाउ सी, कोविड की वजह से कंपनीज को कितना लॉस हुआ. क्या किसी को कुछ पता था कि कोविड भी आएगा? नहीं. ये एक अनसर्टन इवेंट है जिसने बिजनेसेस को बहुत ज्यादा लॉस किया. लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रीज वगैरह कितनी देर बंद रही, जिससे सोचो कितना लॉस हुआ होगा. हाँ, बट ये भी सही है कि इस टाइम में कई कंपनीज को ह्यूज प्रॉफिट भी हुआ, जैसे सैनिटाइजर, मास्क बनाने वाली कंपनीज को, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को. सो रिस्क एक मेन एलिमेंट है हर एक बिजनेस का. हम बिजनेस रिस्क को और भी अच्छे से आगे इस चैप्टर में करेंगे. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब कि हमें नहीं पता कि जो अमाउंट हम कमाने वाले हैं वो हम कमा पाएंगे भी या नहीं. हर एक बिजनेस एंटरप्राइज अपनी मनी इन्वेस्ट करती है प्रॉफिट कमाने के लिए, पर वो नहीं जानते कि जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं वो प्रॉफिट उन्हें मिलेगा भी या नहीं, या लॉस हो जाएगा. सो ये थे बिजनेस एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स. हम स्टडी कर रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोफेशन. Profession include those activities which require special knowledge and skill to be applied by individuals in their occupation. Profession में वो सभी activities आती हैं जिनमें special knowledge और skill चाहिए होते हैं, और profession में engaged persons को professional कहा जाता है. जैसे कि डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशन में engaged हैं और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के regulations और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं. ऐसे ही लॉयर्स लीगल प्रोफेशन में engaged होते हैं और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. चार्टेड अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग प्रोफेशन में engaged हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. The next category is employment. The definition of employment is employment refers to occupation in which people work for others and get remunerated in return. Employment एक ऐसी occupation है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और रिटर्न में कुछ लेते हैं, जैसे वेजेस या सैलरी. जिनको दूसरे लोग एम्प्लॉय करते हैं उन्हें एम्प्लॉयज कहा जाता है, और जो करता है उसे एम्प्लॉयर कहते हैं. जैसे कि कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं और रिटर्न में वेजेस या सैलरी लेते हैं. कुछ लोग बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज हैं. Now let's differentiate between business, profession and employment on the basis of some factors. The first factor is mode of establishment. Means कैसे इन एक्टिविटीज को एस्टैब्लिश किया जाता है. Business, entrepreneur's decision and other legal formalities. So बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का डिसीजन इंपॉर्टेंट है और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती है अगर जरूरत हो तो. प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. प्रोफेशन में हमें किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप और प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है. लाइक जैसे अब सीए है, विच इज अ प्रोफेशन. सीए बनने के लिए हमें आईसीएआई की मेंबरशिप और प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है. नाउ कम्स एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में हमें अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट चाहिए होता है. द नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ वर्क. मींस इसमें किस तरह का काम किया जाता है. बिजनेस, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक. इसमें पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. प्रोफेशन, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज. इसमें लोगों को एक्सपर्ट और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं.
जैसे कि डॉक्टर लोगों को पर्सनलाइज्ड और एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज क्वालिफिकेशन। बिजनेस में क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं होती। प्रोफेशन में प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग नेसेसरी होती है। और एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। द नेक्स्ट फैक्टर इज रिवॉर्ड और रिटर्न, मींस हमें बदले में क्या मिलता है। बिजनेस में जैसे हमने पढ़ा है कि बिजनेस में हमें मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी एंड एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस। The next factor comes capital investment. बिजनेस में कैपिटल की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के साइज और नेचर पे डिपेंड करती है। प्रोफेशन में एस्टेब्लिशमेंट के लिए लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है और एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल लगाने की जरूरत ही नहीं होती। द नेक्स्ट फैक्टर इज रिस्क। जैसे कि हमने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, रिस्क हर एक बिजनेस का मेन एलिमेंट होता है। इसमें प्रॉफिट्स बहुत अनसर्टन होते हैं। प्रोफेशन में फी जनरली रेगुलर और सर्टन होती है, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क होता है। और एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड एंड रेगुलर पे होती है, जिसके कारण इसमें बहुत कम रिस्क होता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस हम किसी और को भी दे सकते हैं, जैसा कि होता ही है। फादर अपना बिजनेस अपने सन या डॉटर को दे देता है, बट विद सम लीगल फॉर्मेलिटीज। प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर है तो वो अपनी सारी नॉलेज अपने बेटे या बेटी को थोड़ी ना दे सकता है। हाँ, बट अगर उसका बेटा सारी पढ़ाई करे तो वो उसी क्लिनिक में काम जरूर कर सकता है, उसका मालिक भी बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करता है तो वो जॉब अपने बेटे को नहीं दे सकता, सो इसलिए इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। देन कम्स कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में एंटरप्रेन्योर की मर्जी चलती है और वो किसी के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता। हाँ, बट वो अपनी मर्जी से इलीगल काम भी नहीं कर सकता। बट जैसे प्रोफेशन में प्रोफेशनल बॉडी के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, वैसे बिजनेस में नहीं करना पड़ता। प्रोफेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने पढ़ा कि एक्टिविटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने समझा कि ये एक्टिविटीज होती क्या है, फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैटेगरीज को पढ़ा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने हर एक कैटेगरी को समझा और बिजनेस एक्टिविटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी की और इन तीनों में डिफरेंशिएट भी किया। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और केस स्टडीज करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स टॉकिंग। थैंक यू।